प्रोग्राम का बाकायदा जो है आगाज़ करने के लिए मैं चाहूँगा कि हम उस रफ़ीक़ुल जलाल के नाम से स्टार्ट करें जिसकी फजल, जिसकी मोहब्बत और जिसकी वजह से हम लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है। لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم. خدا کا ذکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہونا ممکن نہیں ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا جناب شاہد صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. شاہد صاحب. تمام ایک دفعہ نظرانہ کوئی زبان خاموش نہ رہتی، بآواز بلند درود پاک نظرانہ کہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ڈاکٹر انیک صاحب نعت نے شعر پہ غور کرنا کہ نکڑا لینے کے لیے ہے کہ دل سونے نیا بیٹھا، دل سونے نیا بیٹھا، اپنی بات بنا بیٹھا، دل سونے کہ آئے گا وہ محفل نعت سجا بیٹھا، اپنی بات بنا بیٹھا، دل سونے لا بیٹھا. ٹائم نہیں نظامیت کے مد نظر آخری یہ شعر بڑا ہی پیارا شعر ہے کہ جی میں حسن حسین کی جوڑی، جی میں حسن حسین کی جوڑی، جی میں حسن حسین کی جوڑی، پیارے نال پا بیٹھا، پیارے نال پا بیٹھا، دل سونے وما علینا بڑی پرسوچ طریقے سے انہوں نے چند اشعار پڑھے، بہت ہی دل کو چھو لینے والے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اب تقریر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ میں اس پروگرام کی جو افتتاحی جو ویلکم تقریر ہے آپ کہہ لیجیے، میں چاہوں گا کہ آپ ان کا بھرپور استقبال کریں. زبردست شخصیت ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں یہاں پہ. آپ کی بھرپور تعلیمیں ملک رفیق صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام آنے والے مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں
اور جناب ڈاکٹر انیف مغل صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے جشن آزادی کے سلسلے میں یہ کنڈیشن ہمارے لیڈ کونسل بگا شیخا میں رکھا، اور تمام پارٹی قیادت کا میں انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور شمالی پنجاب کے صدر کے لیے میرا نوٹیفکیشن جاری کیا۔ انشاءاللہ میرا وعدہ پورا ہوگا اور انشاءاللہ شمالی پنجاب میں اگلا جو 14 اگست آئے گا جشن آزادی، اس سے شمالی پنجاب کی پوری ریلی انشاءاللہ میں لے کے آؤں گا اسٹیج کے لیے، اور جناب تقریباً 3 یا 4 مہینے کے اندر میں آپ کو یہاں کی تنظیمیں دوں گا انشاءاللہ۔ شمالی پنجاب کے جتنے اضلاع ہیں وہاں کی تنظیمیں آپ کو دوں گا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں کیونکہ ٹائم کی نزاکت سے تقریب تو لمبی ہو سکتی ہے، لیکن بہت سے مہمان آئے ہوئے ہیں تو میرا آج کا ٹائم مہمانوں کے لیے، میں تمام لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں۔ پاکستان تحریک شاد باد سب بہت شکریہ، تالیاں ہو جائیں، زبردست تالیاں ہو جائیں۔ کچھ جوش کم نظر آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے جوش کم ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، چیئرمین بیٹھے ہوں اور آگے کارکن بیٹھے ہوں، آواز نہ آئے تو یہ کوئی مزے کی بات نہیں ہے۔ تو ایک دم ذرا بھرپور نعرہ ہو جائے، ڈاکٹر حنیف مغل، ڈاکٹر حنیف مغل، پی ٹی ایس۔ پیچھے سے آواز بالکل نہیں آ رہی۔ پی ٹی ایس، پی ٹی ایس، پاکستان، پاکستان۔ ایک چیز ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا بالکل اٹینٹو ہو کے بیٹھیں، ذرا جوش ولولہ نظر آنا چاہیے، بیچ میں سے بھی کوئی آواز نعرے کی آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ایک جو ہے نا ایک اچھا اور ویل آرگنائز جو ہے نا پولیٹیکل ایک چھوٹا سا ایک یہاں پہ گیدرنگ ہو رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو آپ کی سیاسی تنظیم ہو یا کسی قسم کی کوئی بھی تنظیم ہو، جب تک اس میں سب لوگ مل کے کام نہ کریں تو وہ تنظیم کی کامیابی اتنا آسان نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ صرف چیئرمین ہی پارٹی کو لے کے چلتا ہے، یا ایسا نہیں ہوتا کہ صرف کارکن ہی پارٹی کو لے کے چلتے ہیں، تو یہ سب کی آپس کی ایک مل جل کے ایک ایفرٹ ہوتی ہے۔ اور اس وقت میرے پاس کچھ نام ہیں جنہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے تحریک ارشاد باد کے لیے، اور میں چاہوں گا کہ ان کو ہم پروگرام کے ساتھ ساتھ ہی ان کو شیلڈ دینے کا جو ہے وہ کام بھی ہم سر انجام دیتے چلیں۔ اور سب سے پہلے میں سر ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ اور جی ٹھیک ہوئی ہے۔ آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید، ویلکم۔ ملک اسفر، ملک ارون، ملک شہر، ملک سکلین صاحب کی طرف سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید۔ یہ ہماری یوتھ کو لیڈ کرنے کے لیے آئے ہیں، ویلکم جی، خوش آمدید۔ بہت شکریہ جناب۔ اچھا جی، میں اب چاہوں گا کہ سب سے پہلے جن کو شمالی پنجاب کا صدر منتخب کیا گیا ہے ان کی انتھک محنت اور کوششوں کے اعتراف کے طور پہ بھرپور استقبال کیجیے گا جناب ملک محمد رفیق عوان۔ بھرپور تالیاں دیجیے۔ اگلے جو جن کو ہم لیٹر دیں گے وہ ہیں جن کو یو سی بگا شیخا کا صدر منتخب کیا گیا ہے، جناب ملک عابد فضل عوان۔ بھرپور تالیاں۔ ملک عابد فضل عوان۔ بچے بچے بھی سپورٹ تیرے نالے، سچے کرے دا ووٹ تیرے نالے، ساڈے بچے بچے۔ اگلا نام ہے جناب جن کو منتخب کیا گیا ہے شعبۂ کھیل سپورٹس کو انتظار راولپنڈی کا صدر، بھرپور تعلیم میں استقبال کریے ملک عابد فضل عوان۔ ملک عابد فضل عوان۔ خوشی تیرا نگہبانے، آوی ہارنا کسے بھی میدانے، آوی ہارنا کسے بھی میدانے۔
बहुत शुक्रिया जी। थोड़ा सा कुछ हल्का सा तालियां हो जाए। थकी गए हो हैं? ये फुटबॉल में करना थकने का तेरी आज क्यों थके थे? क्या हो गया? और तालियां जाए छोड़ो यार, क्या हो गया? ठीक हो गया, बताइए। गुड, शाबाश जी। अच्छा जी, उसके बाद मैं चाहूंगा कि इसी जज्बे के साथ आप उनका इस्तेमाल कीजिएगा। यूसी अलीपुर से शौकत मुगल साहब को मैं दावत दूंगा यहाँ पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक स्टेज पे आ नहीं जाते। ये करेगा वोट तेरे नाले, बच्चे बच्चे भी सपोर्ट तेरे नाले। ये वजह किधर है? आगे आ जाना, फीड मिल के सामने एक टेंट लगा हुआ है। ये आगे आएंगे ना, फीड मिल है, उसके सामने एक टेंट लगा हुआ है। टेंट कामयाब हुए बने हुए तकरीबन 2-3 साल हो चुके हाँ, फीड मिल के हैं। सामने अल्लाह आ के गए। फजलो करम से जो ना ये काफ़ी अरूज पर पहुंच चुकी है। इंशाअल्लाह सब मिलकर जरा काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बहुत बुलंदियों तक जाएगी। अल्लाह का फजल करो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेरे वक्त का बेहतरीन ख्याल रखा। तालियां हो जाती इनके लिए। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे साथ और भी कुछ मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ स्टेज पे बैठे हैं, कुछ नीचे हम बैठे हैं। मैं उनको भी चाहूँगा कि आप उनका भरपूर वेलकम करें। हमारे पास ATV के जो सीनियर डायरेक्टर न्यूज़ हैं अकील अंजुम साहब तशरीफ रखते हैं यहाँ पे। भरपूर तालियां दें अकील अंजुम साहब के लिए। इसके साथ साथ स्टेज पे आप देख होंगे कि हमारे पास एक बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है। आपने क्या कहते हैं इसको फिल्मों में देखा होगा। आपने एक ज़माने में जब मैं छोटा बच्चा था उस वक्त आर्नल्ड की फिल्में चलती थी, बड़े मसद और ये वो। तो हमारे पास भी समझ लें हमने एक पाकिस्तानी आर्नल्ड को साथ लेके आए हैं। इनके लिए भरपूर एलिमेंट का इनके से बात बाद में करूँगा। मैं बताऊँगा कि इनकी क्या डिस्टिंक्शन है, लेकिन इतना ज़बरदस्त तालीम है इनके लिए। नहीं साहब नाम नहीं बड़ साहब हैं। और उसके बाद हमारे साथ एक बड़े नौजवान हमारे टिकटॉक के स्टार हैं शहबाज के लिए भरपूर तालियां हो जाए। जी जी जी, क्या वाला बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का, आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब मैं चाहूंगा कि खिताबात आगे जलसा और है। राजा सफ्दर साहब को, राजा सफ्दर प्लीज आ जाइए। फीड मिल आ जाए आप आगे। फीड मिल है, मिल के सामने आ जाए। बहुत हमारी बड़ी मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम जी। सारे भरावां के तरीके शाबाद शामिल होने ना बहुत शुक्रिया। इसकी तकरीबन 2.5 साल हो गए मुर्तके कोई तो हूँ माशाअल्लाह काफ़ी अरूज हो रहे। शेखा बगैर ने लोगों की सारे इस्लाम पेश करना मांग की और इधर लोगों ने कक्षा की अपना सारा सिस्टम डॉक्टर साहब का मसले की जनाब तरीक सारे मसले के इस वजह सदर साहब की मैं बहुत मुबारक ताकि ये मजीद अगे तुरंत जोड़ के अपने इस तारीख शाहबाद की कामयाब बना माशाअल्लाह। हम तरीके शाहबाद के लिए बहुत अरूज हो रहे हैं। डॉक्टर अजीम मोहन साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो चलने ना सारा सिस्टम की हो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है। पाकिस्तान में बड़ा प्यार करना है और गरीब लोगों ने भी बड़ा प्यार करना है। लिहाजा सारे सारे अपने फैल जाओ तो इन लोगों की जड़े नहीं समझना या नहीं पता उन्होंने दसो कि भाई अपना तरीके शाबाद मसले हो जाओ आओ तो आगे जाओ ताकि कल आने वाले पाकिस्तान हो। बहुत शुक्रिया। राजा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि देखें मैं आपको कुछ बताऊं कि पाकिस्तान के वाले जब हम बात करते हैं 78वां हमने यौम आज़ादी भी मनाया, लेकिन हकीकत बात ये है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, डॉक्टर भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं अभी तक पाकिस्तान ने जो आज़ादी हासिल करने के बाद जो मकासद थे ना वो अभी तक उन मकासद से बहुत ही दूर है।
सीधी सी बात है, और इसमें कोई छुप के डर के या ऐसी करने की बात नहीं। बहुत सारे मामले में अवामी तक नहीं जाऊंगा, लेकिन बात यह है कि मेरी बात याद रखिएगा, मैंने थोड़ी पहले भी बात की थी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी तंजीम, कोई भी मुल्क, कोई भी चीज उस वक्त तक तरक्की नहीं करती जब तक कि सारे लोग मिलकर काम करें। अगर हम ये कहेंगे कि मैं क्यों करूं, वो करे, वो क्यों करे, वो करे, तो फिर सभी लोग बैठे रहेंगे। तो आप लोग, पाकिस्तान से मोहब्बत का यही तकाजा है। लोग बड़े भाषण देते हैं, पाकिस्तान ने आपको क्या दिया, आप ये सोचें, आपको पाकिस्तान ने क्या दिया, आपने पाकिस्तान को क्या दिया, ये सारी भाषण नहीं करते हैं। दुनिया में जितनी भी रियासतें हैं वो अपने अवाम के लिए काम करती हैं और उसके बदले में अवाम उससे मोहब्बत करती है, ठीक है। तो ये एक अब बात सिर्फ इतनी करने की है कि हम क्योंकि अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो अब हम जिसके लिए मोहब्बत करते हैं तो हमें उसके लिए थोड़ा सा काम भी करना पड़ेगा। खाली जुबानी मोहब्बत से सिर्फ घर पे बैठ के खुश हो लेने से कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर साहब जैसे लोग जो कि इसी बात को लेके प्रैक्टिकली मैदान है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर साहब सबसे बड़े सियासतदान बन जाएंगे या कुछ हो जाएगा ये, लेकिन देखें, एक मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ, बात बन जाएगी, लेकिन जब हजरत, ये एक रिवायत है, इसकी सनद की बात करता है, लेकिन समझने के लिए एक अच्छी चीज़ है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो बहुत बड़ी आग थी, तो एक चिड़िया जो है ना वो अपने हिसाब से मुंह में पानी डाल के तो उसको बुझाने की कोशिश की। किसी ने उससे पूछा, इतनी बड़ी आग है, तुम चिड़िया, एक कतरा नहीं आता तुम्हारे को, तुम किस चक्कर में ये आग बुझाने जा रही हो, इससे आग बुझती है। उसने कहा आग बुझे ना बुझे, लेकिन मेरा फर्ज ये था कि मैं अपने हिसाब से जितना मेरा हाथ पड़ता है मैं वो कोशिश करता। तो चिड़िया के मुंह में इतना तो पानी था। आप सब मिले कि हम लोग भी वही चिड़िया हैं। अगर ये सारी चिड़िया मिल के एक एक कतरा लेके जाएंगे तो यकीन है कि पाकिस्तान का जो बंजर पाकिस्तान है, ये सब तो शदाब हो जाएगा। इसलिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी फील करनी है, और ऐसे लोग जो कि सिर्फ इक़्तिदार के लिए नहीं, वो अवाम के लिए और अवाम की खिदमत के लिए मैदान में है, इनके आपको हाथ में बहुत शुक्रिया जी। इसके बाद मैं चाहूँगा कि अगला जो हमारे मुकर्रर हैं चौधरी अमजद एडवोकेट, भरपूर से कॉल कीजिएगा, चौधरी अमजद एडवोकेट। ये बहाने आवी हारना किसे। अस्सलाम वालेकुम, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक शाहबाद, मरकजी सदर, शुमाली सदर और दीगर और जो स्टेज पे बैठे हुए मेरे दोस्त और पंडाल में बैठे हुए छोटे भाई, बड़े भाई, अजीज बुजुर्ग, सबको अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत ही खूबसूरत इवेंट जो यहाँ के तहरीक शाहबाद के मकामी क़यादत ने इस इवेंट का इनेकाद किया और जिसमें हमारे शुमाली पंजाब के सदर साहब हैं, उन्होंने मरकज़ी रोल अदा किया और पाकिस्तान का 78 जश्न आज़ादी आज हम मना रहे हैं, तो यकीन जाने बड़ी खुशी हुई है। तो ये एक नई जमात है हमारी और हम अभी इब्तदाई मराहल से गुजर रहे हैं। इस सिचुएशन, मौजूदा हालात में इतनी अच्छी गैदरिंग का इनेकाद करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है और मैं इस कामयाबी में मैं चाहता हूँ कि आप तमाम लोग तालियां बजा के हमारे सदर साहब के लिए किसी का इस्तेमाल करें। अब मैं कुछ, मेरी डिस्कशन अक्सर डॉक्टर साहब से होती रहती है, अब पार्टी के हवाले से बात करता चलूँ। हमारा जो ख्वाब है, हमारा एम है, बहुत सी पार्टियां काम कर रही है, बेशुमार पाकिस्तान में 100 से ऊपर पार्टीज है और जितनी भी पार्टीज है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है अच्छा करने की। मैं किसी के तनकीद नहीं करता, लेकिन हमारा आने का मकसद क्या है? तो देखिए, पहली बात कि हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, हमारी आवाम है, उनको जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। पहला बुनियादी हमारा ये है जान और माल। अगर मेरी जान सिक्योर है, मुझे जान की तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो फिर मेरा माल मुझे काम आएगा। तो सेकंड आता है माल, फिर मुझे पहले मेरी जान का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, फिर माल की तरफ मेरे माल को, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरी इनकम है, जो मेरे सोर्स है, जहाँ से मैं इनकम पैदा करूँ, उसको भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इब्तदाई काम हमने यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ देना है, फिर सिक्योरिटी देनी है लोगों को। यार ये जो हमारी पार्टी है, इस मुल्क में अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, आप लोगों ने हमारे साथ चले, तो हम चाहते हैं
यार ये सिस्टम को चेंज लाना है, सिस्टम को चेंज लाने के लिए हमारा एक ख्वाब है। देखिए डॉक्टर साहब ने ख्वाब देखा है और हम सब मिलके उसमें एफर्ट कर रहे हैं। तो क्या है, हम यूनिकोसल लेवल पे चेंज लाना चाहते हैं, एक छोटी सी यूनिकोसल लेवल पे असेंबल हो, यानी आपके बुनियादी मसाइल नेशनल लेवल पे आपके MNA या MPA ना करें, वो सिर्फ लेजिस्लेशन करें, उनका काम कानून साजी हो, ना कि आपके बुनियादी मसाइल हो। बुनियादी मसाइल है वो यूनिकोसल लेवल पर लेके आए। ये जो लोग बैठे वो यूनिकोसल सतह के लोग, जिनकी एक असेंबली हो जिसकी कोई भी तादाद हम मुकर्रर कर सकते हैं, 20 लोगों की असेंबली हो, 25 लोगों की हो, 50 लोगों की हो, वो असेंबली यहाँ के इशू को डिस्कस करें, अपने रिसोर्स जनरेट करें, टैक्सेशन का सिस्टम उसके पास होना चाहिए, वो टैक्स नाफज करे, कितने % टैक्स लाना है उस यूनिकोसल ने देखना है, अपनी इनकम जनरेट करे, उसमें 50% अपने पास रखे, 50% ट्रांसफर करे, 25% मरकज को और 25% सूबे को। तो जो एक असेंबली जो आप लोगों ने यहाँ बनाई, तो आपके इलाके में जितनी इंडस्ट्री काम कर रही है आपकी नजर में होगी कि यहाँ पर इंडस्ट्री काम कर रही है, ये टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्योंकि जब आप खुद उसका टैक्स कलेक्ट करेंगे तो आपकी नजर में होगी कोई बंदा टैक्स चोरी नहीं करेगा। तो जब 50% आपने अपने इलाके में खर्च कर रहा है, तो आपने उस टैक्स जनरेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, तो बढ़ता जाएगा। इस तरह ना कि टैक्स, लेकिन वो जो प्रॉब्लम होती है ना टैक्स देने में कि लोग दे नहीं रहे या वो इकट्ठा नहीं हो रहा, तो क्यों? क्योंकि ऊपर के लोगों को इसका इंटरेस्ट ही नहीं है। जब ये यूनिकोसल सतह पर आ जाएंगे, मसाइल हल होंगे, आप लोग उसमें ताउन करेंगे तो ये मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारी जो वो नजर होती है ना जहाँ वो हमने MPS की तरफ, वो खत्म हो जाएगी। तो मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता, तो बाकी लोग भी बैठे हुए, तो ये शॉर्ट तक है कि हमारा ये बिल्कुल डॉक्टर साहब का क्लियर है कि ये चाहे जाना है वो नीचे से आना है, तब्दीली नीचे से आएगी, कभी ऊपर से नहीं आती है। नीचे से लेके हमने चलना है उस तब्दीली को नाफज कर रहा है। एक और मिसाल, ये तनख्वाह का पैकेज 25-25 लाख, 30-30 लाख, 50 लाख लोगों की तनख्वाहें रखी हुई है। क्यों? टैक्स गरीब लोग देते हैं और ये इतने मारा, तो हमारा उसमें हमारी एक सोच है कि ज्यादा से ज्यादा जो तनख्वाह है वो मैक्सिमम, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस है, इन दो में 2 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए तनख्वाह। जब आप उनको गाड़ी मुफ्त दे रहे हैं, उनको कन्वेंस लॉस दे रहे हैं, सारी सहूलियात देने के बाद उसे अगर 2 लाख मिले तो उसके लिए बहुत है। लेकिन ये होते इज्जत होती है, अगर वो करने तो ठीक है, नहीं छोड़ दें, कोई और आ जाएगा ना उनके लिए काम करने के लिए। तो ये मैक्सिमम चीजों को हमने ऐसे करके उसको इकट्ठा करके सोच को यूनिकोसल से लेकर फिर ऊपर की तरफ जाना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपने डॉक्टर साहब की आवाज बनना है, आवाज बनने की मुझे इतनी खुशी हुई है, ये इस लेवल का कन्वेंशन बहुत अच्छा हुआ है। तो आपने इस आवाज को घर घर, गली गली, शहर शहर पहुंचाना है। कभी 10 लोगों से 20 होगी, 20 से 30, 50, 100 और ये हजारों में पहुंच जाएगी। तो मेहरबानी करके डॉक्टर साहब की आवाज बने। मैं ये किसी पार्टी पे कोई तनकीद नहीं है, सारी पाकिस्तान की पार्टियां सारी इज्जत के काबिल है, हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमने अपना काम करना है। अगर आपने साथ दिया तो इंशाअल्लाह ये मुल्क भी तरक्की करेगा, हम भी करेंगे, डॉक्टर साहब की चादर में इंशाअल्लाह करेगा। थैंक यू वेरी मच। काम कर रहे हैं, भरपूर तालियां में हसन अख्तर साहब, हसन अख्तर साहब। इलेक्शन में जिताए, जेड़ी जाते जाइए नारायण को लाए, हनीफ वाले नो इलेक्शन में जिताए, चाकू के निशान पे मोरा लाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं इतनी लंबी थोड़ी बात नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं अजीब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पार्टी बनाई है और मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान है तो हम अगर मिलजुल के काम करें, कतई कतई से समुद्र बनता है। हम अपना थोड़ा थोड़ा मिलजुल के काम करें तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे।
बहुत शुक्रिया सर। हसन साहब आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, क्या पोजीशन आपकी? ठीक हो, भले हो, खुश हो ना? तालियां चाहिए सकते मेरा हाल में कब साहब राशना इतना तालियों ये क्या बात है। बहुत पता चला ना कि बंदे बिल्कुल रेडी है, जागने पे, सुनते नहीं पे। ठीक है, चले जी। अच्छा जी, अब मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त शख्सियत को बुलाऊंगा स्टेज पे। मैं चाहता हूँ कि आप उनका भरपूर इस्तेमाल करें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि थोड़ी सी बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन किसी भी कोई भी काम करने के लिए, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपका ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बजट या ऐसा चीज़ें रखी जाती हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब जैसे लोग जब आएंगे आगे और आप जैसे लोग जब उनको सपोर्ट करेंगे तो एक दिन वो भी आएगा कि जब हम सेहत के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ा बजट रखने लगेंगे, क्योंकि अभी हमारी प्रायोरिटी सेहत नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं, हमारे कुछ सच्चे नौजवान, कुछ ऐसे लोग जो जज्बाती हैं, जो चाहते हैं यार कि वो भी सेहतमंद नजर आए और साथ में माशरे को भी सेहतमंद कर दें, वो अपने तौर पे बड़ी कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक जबरदस्त हीरा हमारे साथ मौजूद है। मैं इनको पाकिस्तान का आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बोलता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से जब आपके सामने आएंगे तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। दुआ दीजिएगा इनके लिए भी। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बॉडी बिल्डिंग में अपना नाम कमा रहे हैं। 1995, आज से 30 साल पहले, 35 साल का इनका टोटल एक्सपीरियंस है। और 1995 में इन्होंने मिस्टर रावलपिंडी का खिताब जीता। तालियों जी, मिस्टर रावलपिंडी का खिताब जीता, सबसे अच्छे बॉडी बनाने वाले। फिर उससे अगले साल 1996 में इन्होंने मिस्टर पंजाब का खिताब जीता। हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं जबरदस्त ट्रेनर। आजकल ये बहुत सारे पिंडी में खास तौर पे बहुत ज़्यादा ऐसे जो बॉडी बिल्डिंग के जिम्स हैं, क्लब्स हैं, इसी तरह से जो मिक्स मार्शल आर्ट के बहुत सारे सेंटर्स हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं। और नौजवानों के लिए जो है इन्होंने एक रास्ता खोला है कि वो बजाय इसके कि गैर तामीरी सर्कल में भी जाएं, तामीरी सर्कल में की तरफ आएँ, अपने जिस्म को भी बनाएं, अपने जहन को भी बनाएं, और फिर पाकिस्तान के अंदर एक मुफीद शहरी के तौर पर काम करें। तो भरपूर से तालियां आपकी लोग देनी चाहिए, भरपूर से नहीं बचा अभी हारना किसे भी न जाने। तो डॉक्टर साहब अभी तो क्यों आपको मालूम है हमारी टीम एक वो टीम है। हम चाहते हैं कि हम पूरा पाकिस्तान इस टाइम हेल्थ में, अब इस तरह के जो सपोर्टर बंदे भी आएंगे तो सरकारी बंदे भी आएंगे, यूके से भी है, उनके दोस्त आएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी जो टीम है, जो सीनियर वो टीम जो क्वालिटी वो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। नहीं साहब जा रहे थे कि नहीं, आप आएंगे तो आपको देख के नौजवान मोटिवेशन पकड़ेंगे। एक तो जबरदस्त तालियां हैं। और मैं आपको सही बात बताता हूँ कि जब तक एक हम आम बात सुनते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो तंदुरुस्त चाहे इंसान का जिस्म हो चाहे माशरा हो, जब तक तंदुरुस्त माशरा तंदुरुस्त जिस्म नहीं होगा तो वो अच्छी बातें, अच्छे काम, अच्छी सोच नहीं निकाल सकता। मेरी जितने भी यहाँ पे नौजवान हैं, यहाँ पे स्पेशली बड़े माशाल्लाह जज्बाती नौजवान होते हैं, तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी के अंदर स्पोर्ट्स को शामिल करें। जरूरी नहीं कि आप बॉडी बिल्डिंग ही करें। ये एक मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, व्हाट्सअप आए हुए थे। व्हाट्सअप पर बहुत मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आज ये बहुत बिजी थे और उन्होंने बहुत बिजी स्केड्यूल में हमारी रिक्वेस्ट से डॉक्टर साहब की मोहब्बत में यहाँ पे आए हैं। और लेकिन मैं आप उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि याद रखिएगा कि जब तक आपका जहन और जिस्म आपका तंदुरुस्त नहीं होगा, आप कभी भी ना माशरे में, ना अपने घर के लिए, ना ही अपने मुल्क के लिए कोई कारनामा से अंजाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल कीजिए, अपनी जिस्मानी जहनी सेहत का ख्याल कीजिए। अब तकरीर के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास अगले मुकर्रर हैं, आप भरपूर तालीम उनका इस्तेमाल कीजिएगा। जनाब उल्फत मुगल साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मेहमान इकराम और स्टेज पर भी बैठे हुए और तहरीक शाद के बानी चेयरमैन
डॉक्टर मोहम्मद हनीफ मुगल साहब जो आज प्रोग्राम जश्न आज़ादी के हवाले से आए बैठे सबको इकट्ठा किया इन्होंने, और ये एक पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जब ये आज़ाद होता है, उसके बाद कितना वक्त गुजरा और क्या हमने खोया और क्या हमने पाया। ये उस वक्त से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे लोग आए हमारे दरमियान, हमसे पहले गुजर भी चुके, और हमारे बुजुर्गों ने भी देखा कि आया कि इस पर कितना काम किया गया, और बहुत सारे ऐसे मामला हुए, लेकिन कुछ खानदान के लोग इस पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गए, लेकिन जो आम आदमी, एक मजदूर और एक गरीब आदमी, उसको उसके हकूक से महरूम किया गया। मलक मौसम साहब को पंडाल आमन पर खुश अमदीद कहते हैं। मलक मौसम साहब स्टेज पे तशरीफ ले आए हैं, उनके साथ आए उनके दोस्त को भी वेलकम करते हैं, उनकी खुश अमदीद। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए जो डॉक्टर मोहम्मद हनीफ मुगल साहिब चेयरमैन तहरीक मलक अमन साहब वेलकम जी, खुश अमदीद। ने ये फैसला किया कि हर एक जो मजदूर से लेकर ऊपर तक जितने भी लोग हैं, रूल ऑफ लॉ और तमाम शहरियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो कि सबका एक कानूनी आईनी हक है, मिलना चाहिए, और उसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छी माशाल्लाह हमारे सामने एक कमेटी भी बनाई। इन्होंने कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जो कि जिसकी वहाँ पर वो नहीं है कौन जो कि अपना वकील मुकर्रर कर सके, या उन्होंने कोई वो अपने मामला अपनी जो जिसके पास रेमेडी है वो उस रेमेडी तक नहीं पहुँच सकता, उन्होंने अगर कोई ऐसा शख्स जो कि उसकी दायरे इख्तियार में नहीं है कि वो अपना इंसाफ के लिए वो नहीं अपना वकील मुकर्रर कर सकता, फीस नहीं पे कर सकता, या कोई यतीम लावारिस या ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे माशरे में, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उन कानूनी मामलत के लिए इन्होंने कमेटी रावलपिंडी इस्लामाबाद के बड़ी अच्छी वो काम कर रहे हैं। और अगर किसी शख्स को यहाँ मौजूद है और नहीं भी मौजूद, वो सब इनसे इस हवाले से भी रब्ता कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको कामयाब करें, और पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए ये जो हम बैठे हुए हैं, एक बंदे की ये जिम्मेदारी नहीं है कि ये पाकिस्तान को एक बंदे ने नहीं चलाना, ये हर एक शख्स की जिम्मेदारी है। और ये पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े अच्छे तरीके से जब वो बात की, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान तो आज़ाद हो गया आज, लेकिन इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसको मुस्तहकम करने के लिए हर एक फर्द, हर एक शख्स की जरूरत है। एक शख्स के बस में नहीं होता कि वो इस सारा काम करे, लेकिन हर एक के जिम्मे जो एक जिम्मेदारी है, वो सारी जिम्मेदारी वो अपनी पूरी करे, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो आपको कोई कामयाबी ना मिले। और बहुत सारी ऐसी पार्टीज देखी गई जो कि अपना मफाद इलेक्शन के टाइम आकर रिक्वेस्ट करके कुछ लोगों को इस्तेमाल करके
नंबरदार और चेयरमैन लोगों को इस्तेमाल करके वो अपना मफाद को ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग वो जो गरीब यतीम मसाकीन जो बेवा खातून वो अपने हक के लिए धक्के खा रहे होते हैं, लेकिन उनकी घर जब उनके ऑफिस में जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि साहब मीटिंग है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इकराम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तुम सबको जश्न आज़ादी मुबारक पेश करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। आज जाग रहे हैं ना आप लोग, मेरा बर्थडे का नींद आ जाए। अच्छा जी, अब मैं एक ऐसे शख्स से नाम मैं मदद करूंगा जो आपसे की बातें करेंगे। जब पीटीएस स्टार्ट हुई तो ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने डॉक्टर साहब के साथ डे वन से न सिर्फ साथ दिया बल्कि उनको इंकरेज किया, और मीडिया से उनका ताल्लुक है, बहुत सीनियर साथी हैं और एंकर पर्सन है डायरेक्टर न्यूज़ में, ए न्यूज़ टेलीविजन के, और बहुत ज़्यादा एक्टिव है मीडिया के अंदर, और डॉक्टर साहब के साथ स्पेशली इनकी खास मोहब्बत और खास लगाव है। मैं चाहता हूँ आप लोग ज़बरदस्त इस्तेमाल कीजिए उनका शान जनाब अकील अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम क्या कहते हैं? आवाज आए, खाना नहीं खाया दोपहर का? अस्सलाम वालेकुम। हम किस लिए इधर जमा है? जश्न आज़ादी तहरीक के लिए। इतने खूबसूरत डॉक्टर हनीफ मुगल साहब यहाँ मौजूद है, ये डॉक्टर सलीम साहब मौजूद है, डॉक्टर मिर्जा साहब मौजूद है, अब मुरझाए में बैठे हुए बचा गया। इतना खूबसूरत एंकर लेकर आए, ऐसे एंकर की तालीम जाए, गौर याद खान साहब की तालीम जाए, और थोड़ा सा इज्जत लाए दादा वक्त कम है, मैं तो 3 से 4 मिनट बात करनी है। हम पाकिस्तान तहरीक शहादत के प्लेटफॉर्म से जश्न आज़ादी की यहाँ पे मौजूद है। आए पाकिस्तान का नारा जाएंगे, अपने कहना जिंदाबाद पाकिस्तान, जोर दबा देते हैं, ये हमारा मुल्क है। आप खुदा पाक का शुक्र है कि बड़ी जद्दोजहद से हासिल हुआ है। पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक शहादत, डॉक्टर मोहम्मद अली जबरदस्त। अब सब लोग खुश हैं? हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा पाक ने पाकिस्तान में हर जगह से बेहतरीन अपने सपूत किए, और पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत बेटा डॉक्टर मोहम्मद अली मुगल यहाँ पे मौजूद है। मेरे पहले यार कहते हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि डॉक्टर मुगल साहब रात को जाए दिन को जाए जिस वो जी चाहता जाए, जो मसला जी चाहता है लेकर जाए। आप खुश सलूकी से सुनेंगे और जहां तक हमसे मुमकिन हो सका उसके हल करने की कोशिश करेंगे। मैं खास तौर पर जिक्र करूंगा पाशा जैसे गोरिया साहब, माशा देखने भी खूबसूरत है, बोलने भी खूबसूरत है, और दिल के भी खूबसूरत है, और तहरीक शहादत के साथ बेफा के साथ है। डॉक्टर हनीफ मुगल साहब की मोहब्बत है हम लोग, लेकिन डॉक्टर मुस्तफा मुगल साहब आगे खड़े हो जाइए जी। डॉक्टर सलीम मुगल साहब खड़े हो, राजा साहब इनकी बुजुर्ग है हमारे, और चाहे आप मुझे जहाँ भी इनकी मोहब्बत सलाम नजर आती है, और ये वाकई तहरीक शहादत का मोहब्बत है। डॉक्टर साहब खड़े हो, आप राजा साहब खड़े हो जाए, मेरे हिसाब से नहीं बात साहब खड़िएगा, नहीं बट साहब अभी और अभी खड़े हो जाए। ये शहबाज खान आप आए हैं, आप जरूर खड़े हो जाते हैं। इधर डॉक्टर इश्तियाक साहब वो हमेशा मुतहरिक नजर आते हैं, एक्टिव नजर आते हैं। अदील साहब मौजूद है, जो बेटा अली आप हैं, आप सब लोग जितने लोग आए हैं ऐसा कहीं लोग आते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली मुगल एक तहरीक का नाम है, उन्हें अपनी तंजीम का नाम है पाकिस्तान तहरीक, बोले अपनी बात है पाकिस्तान तहरीक शहादत। ये और शहादत क्या है? उधर बैठने वाले भी लोग आए थे, लोग उधर खड़े रोज स्पीच आने लगे बैठे होंगे, जो लोग उधर खड़े सब लोग अपनी सीटों पे बैठे। पाकिस्तान तहरीक शहादत अवामी अज़म के साथ आई है, और जश्न आज़ादी की 4थी तकरीब है। 3 तकरीब पहले हो चुकी है
اور یہ اچھی بات ہے, عوامی جوش ہے کہ ہم نے جشن آزادی کو مقبول طریقے سے منانا ہے, اس کو روکنا نہیں ہے. ہمارے نوجوان نسلوں کو پیغام دینا ہے, جیسے گول کو بھی بات کر رہے تھے کہ ہم نے عام روٹین سے ہٹ کر نہیں بات کر رہے ہیں, صحت مند معاشرے تشکیل میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم نے پاکستان کو جیسا جرائم جناب بڑھتی جا رہی ہے, جرائم ثانی بنانا ہے جس کو پاکستان بنانا ہے. ہم نے پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے اپنے اپنے طور پہ. ہم نے پاکستان سے نفرت کا, تعصب کا خاتمہ کرنا ہے, فرقہ واریت کا خاتمہ کرنا ہے. ذات بات کسی چیز میں نہیں جانا, بلکہ ہم نے ہر پاکستانی سے پیار کرنا ہے بلا تفریق, رنگ, نسل اور مذہب. ہم سب ایک ہیں. اور یاد رکھیں کہ پاکستان کی خوشحالی تب ممکن ہے جب ہم کسی غریب کو غریب نہیں, کمتر نہیں, اور کسی امیر کو کمتر نہیں, بلکہ سب کو ایک جگہ کریں گے. اور ہم یہ دل میں عہد کریں گے, ہم اپنی نسلوں کو, اپنی اولاد کو یہ پیغام دیں گے کہ وہ تین پاکستان کی سالمیت کے لیے, بقا کے لیے, وہ سب سے بڑھ کر آپ کو پتہ ہے حقوق اللہ زیادہ ضروری, حقوق بولے آپ لوگ, حقوق العباد ہے بندوں کے. ہم سب نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے, اور ڈاکٹر صاحب اسی علم کو لے کر, اسی جھنڈے کو لے کر چلے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میں نے پرسنلی خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, بہت سی سیاسی تنظیمیں, مجھے آلموسٹ 25 سال سے پروگرام میڈیا میں آئے, بہت سی سیاسی تنظیمیں ہیں جو سب میں ماڈولی چلتی ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ عوامی ماڈولی چلتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج تمام ٹیلیویژن چینل انٹرنیشنل این جی او یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان سے ایک شاد بات, پاکستان کی واحد سیاسی بات ہے جو امنی طور پر میدان ہے. ورنہ یہاں پر سب فصلی بٹیرے نظر آتے ہیں, جو الیکشن کے دن ہوتے ہیں نظر آتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کو ڈھونڈنے سے چاہے ایم این اے جیتے یا ہارے, آپ کو الیکشن کا نہیں ملے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ جس وقت دیکھیں عوام کے اندر اندر گئے, آئے ڈاکٹر صاحب کے بھرپور تعلیم جاتے ہیں. ہم ایک بار پھر پاکستان زندہ باد بنا رہے ہیں, پاکستان کا ارشاد بہت شکریہ. ہیلو, بہت شکریہ. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آج ہے لگار کے اندر آ جائے, کرسیوں پہ بیٹھ جائے. بہت شکریہ جی. آپ لوگ تشریف رکھیے گا اپنے اپنے نشستوں پہ. تمام دوستوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اب ہم اس تقریب کے بالکل اختتام تک جا رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آج کا جو زبردست پروگرام ہوا کنونشن تھا, یہ پاکستان تحریک شاد باد کے پلیٹ فارم سے جشن آزادی کا کنونشن تھا, جس میں ہم نے پاکستان کی یوم آزادی کو سیلیبریٹ کیا. اور اب میں چاہوں گا کہ اس تقریب کے اختتام میں اس شخصیت کو بلاؤں جس کی وجہ سے آج یہ سارا ہم نے ایک میلہ سجا کے رکھا ہوا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ یقین کریں کہ جب کوئی بھی شخص کسی بھی اسٹیج پہ اسٹیج ایکٹو بنتا ہے تو بعض وقت اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس نے نہ چاہتے کہ لوگوں کی تعریف کرنی ہوتی ہے. اور یہ مطلب ایک روٹین ہے, جب بھی آپ میڈیا سے یا کسی بھی چیز کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کو یہ چیز, آپ کو کچھ نہ کچھ ان کی تعریف سے بولنا پڑتا ہے. لیکن مزہ بولنے والے کو تب آتا ہے کہ جب وہ کسی ایسی شخص کی تعریف کر رہا ہے جو واقعی اسی تعریف کے لائق ہوتا ہے, پھر وہ جو بات ہوتی ہے وہ دل سے لکھتی ہے. تو ایسے ہی ایک بہترین شخصیت ہے ڈاکٹر انیف مغل صاحب, جو نہ صرف سماجی لحاظ سے, صحت کے لحاظ سے نہیں بڑھ سکتے, وہ جسمانی صحت کی بات کر رہے تھے. وہ ڈاکٹر صاحب بیماریوں سے بچاتے ہیں, ٹھیک ہے, بیماریوں کے ساتھ ان کا لڑائی ہے. تو بیسکلی اسی چیز کو سامنے رکھ کے ڈاکٹر صاحب نے اپنی جماعت بنائی, اور اسی جماعت کے آپ ماشاءاللہ پلیٹ فارم پہ آج بیٹھے ہیں. میں چاہوں گا آپ کھڑے ہو کر زبردست استقبال کریں تاکہ ڈاکٹر صاحب کو پتہ چلے وہ جو محنت کر رہے ہیں لوگ اس کو اسی طرح سے عزت بھی دے رہے ہیں, اس میں ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. تو پلیز کھڑے ہو جائیے اور کچھ نعرہ لگانا چاہتا ہوں تو آپ کا میرا ساتھ ہے. ہم جشن آزادی کے سلسلے میں یہاں جمع ہیں, تو اس سلسلے میں آپ لوگ میرا ساتھ دیں اور کھل کے جشن بنائے وطن کے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے تمام عزیز ہم وطنوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور جتنے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے بہت محترم بھائی جو پنڈول میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے جو شیلوں نوجوانوں، میرے بچوں، جو بھی رشتہ جیسا بھی ہے، سب کو ڈاکٹر حنیف کا سلام پہنچے. الحمدللہ آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. ایک خواب قائد اعظم، ایک خواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا. انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا اور الحمدللہ پاکستان بن گیا. دیکھیں پاکستان تو بن گیا، اس کے لیے بہت قربانیاں دی، لازوال قربانیاں دی گئی اور ایک وطن ایک ٹکڑا ہم نے حاصل کر لیا. پاکستان حاصل کرنے کا ایک باقاعدہ مقصد تھا کہ ایسی جگہ بنی جائے، ایسی تجربہ گاہ بنے تاکہ وہاں پہ ہم اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں اور ہم یہاں ایسی تجربہ گاہ کریں کہ دنیا ہم سے سیکھے اور دنیا کو ہم سے سکھا سکیں کہ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا پاکستان. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بس پاکستان بننے کے بعد فوراً ہی ہم ڈی ٹریک ہو گئے اور کچھ مسائل پیدا ہو گئے. ایک خواب ڈاکٹر حنیف نے دیکھا ہے، ایک خواب ہم نے دیکھا ہے اور وہ ہمارا خواب ہے پاکستان شاد باد. انشاءاللہ پاکستان شاد باد ہوگا. آج میں یہاں پہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں اسی مٹی کا بچہ ہوں، اسی مٹی کا، یہی سے ہم نے جنم لیا ہے اور میں اپنے گھر میں ہوں. اور ویسے تو پورا ملک ہمارا گھر ہے، لیکن یہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہماری اپنی مٹی ہے، یہ میری جائے پیدائش ہے. اور یہاں کے لوگ بہت جریح، بہت بہادر اور جفاکش ہیں. یہ مشکل کچھ نہیں ہے ہمارے لوگوں کے لیے. اللہ نہ کرے بڑے سے بڑی مصیبت آئے، بڑے سے بڑے دنیا کہتی ہے یہ گئے، یہ مک گئے، لیکن کچھ دیر کے بعد ہم دوبارہ اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح کچھ دیر پہلے تھے. اور لوگ پھر کہتے ہیں یار یہ اس کا بیٹا پھر آ گیا، اس کا پوتا پھر آ گیا. تو یہ وہ سرزمین ہے جس میں ہم کھڑے ہیں، یہ جری لوگوں کی سرزمین ہے. تو میں ایک خواب، یہ ساری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک خواب، ایک مقصد اور ایک منزل کے اصول کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں. ہمارا خواب صرف یہ ہے کہ پاکستان شاد باد. دیکھیں مجھے تعلیم پسند ہے، میری بات کو ذرا غور سے سننا. مجھے تعلیم پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ تعلیم یافتہ ہوں، سب لوگوں کے بچے تعلیم یافتہ ہوں. کسی کا بچہ اس وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہے کہ اس کے پاس فنڈ نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں. دوسرا، مجھے خوشحالی بہت پسند ہے، مجھے شاد بادی بہت پسند ہے. میں خوشحالی کو بہت پسند کرتا ہوں اور میرا یہ دل ہے، میرا یہ مشن ہے، میرا یہ مقصد ہے کہ ہمارے ملک کے خطاطات میں ہر بندہ خوشحال ہو، ہر بندہ شادباد ہو، ہر بندہ پرامن ہو. یہ میرے دل کی خواہش ہے. یاد رکھنا مجھے صحت بہت پسند ہے، میں صحت مند رہنا بہت پسند کرتا ہوں اور مجھے میرا دل یہ کرتا ہے کہ میرے جتنے بھی دوست ہیں، ہمارے ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ صحت مند ہوں. یاد رکھنا مجھے روزگار، باروزگار، برسر روزگار، بزنس بہت پسند ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے تمام نوجوان، تمام بزرگ، تمام بچے اچھے بزنس میں اچھے کاروبار کریں. اور وہ کوئی نوجوان، میری دعا بھی ہے، ہماری کوشش بھی ہے کہ کوئی نوجوان اپنے خواب سجائے، وہ در بدر نہ ہو، ہاتھوں میں ڈگریز اٹھائے، در بدر کے ٹھوکریں نہ کھائے. انشاءاللہ پاکستان تحریک شاد باد کا یہی ایک مقصد ہے، یہی ایک مشن ہے اور اسی کے لیے ہم میدان میں آئے ہیں. تو میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، تو مجھے بتائیں کہ آپ اس مشن میں پاکستان تحریک شاد باد کے ساتھ ہیں؟ انشاءاللہ. کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں ہمارے ہاں آج 78 سال ہو گئے
اور تعلیم सबसे देखिए बीमारी इतनी बड़ी हो जाए जब तक इसकी डायग्नोज ना हो ठीक नहीं पकड़ी जाए बीमारी जब कोई बड़ी नहीं है चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है वो तालीम का है। बदकिस्मती देखे 78 साल हो गए और जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बच्चियों का सिर्फ प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे मिडिल हाई नहीं है, सिर्फ प्राइमरी स्कूल है। अब ये क्या है देखिए यहाँ से नुमाइंदे मुश्किल तो होते ही रहे ना। जिस तरह चौधरी साहब ने फरमाया कि हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, सारी पार्टी वाले बहुत अच्छे हैं, सारे लोग कोशिश करते हैं, लेकिन यार खुदा का खौफ करो। आप लोगों के बच्चे तो वहाँ पढ़ते हैं जहाँ हमारी दस्तरस भी नहीं है, लेकिन जहाँ से आपने कोर्स लिए, जिस पे आपने सियासत की है, वहाँ पे बच्चियों के लिए क्या एक कॉलेज भी नहीं बनता? होना तो ये चाहिए था यहाँ यूनिवर्सिटीज होती, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी का स्कूल है बच्चियों के लिए। अब देखिए एक तो ज्यादातर लोग जो है गरीब होते हैं, अमीर भी होते हैं, बच्चियों को बाहर भेजना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो कैसे अपनी बच्चियों को तालीम, फिर कहते हैं कि औरत पढ़ी लिखी औरत, यार खुदा का खौफ करो, ये नारों से निकलो और प्रैक्टिकल लेवल पे आओ। पाकिस्तान तरीके की बात के मंशूर में शामिल है। पाकिस्तान बच्चा पैदा हो तो रियासत का है, कहते हैं रियासत माँ है, बच्चा पैदा हुआ तो रियासत का है। अब उसकी तालीम बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए, खुदा न खास्ता वो बीमार हो उसकी सेहत बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए, और वो जब वो तालीम मुकम्मल करे उसको रोजगार देना रियासत का काम है। फिर वो 60 साल हो गया, जैसे बूढ़ा हो गया, अब उसको अकेला नहीं छोड़ना, उसको सारा रियासत उसकी माँ है, रियासत उसको संभाले, उसको हर काम, उसको जितनी जरूरियात है वो रियासत उसको अकेला ना रहने दे। ये मुख्तसर सा हमारा पैगाम है, ये मुख्तसर सी हमारी ख्वाहिश है। ना तो हम इतनी बड़ी बातें करते हैं, ना हम इतने बड़े नारे मारते हैं, ना हम कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ना हमें करने की जरूरत है। 4 चीजें हो जाए, हर बंदा तालीम याफ्ता हो जाए, हर बंदे को सेहत, इंसाफ, रोजगार आसानी से मिलना शुरू हो जाए, अमन और अमान हो, मालो जान का सुकून, उसकी मालो जान उसको तहफ़्फ़ुज़ हो। और फिर जिस तरह हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं कि हमारी मुकला की एक बहुत अच्छी टीम है जो स्टेज पे बैठे हुए नजर भी आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जो लोग पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जो जिसके साथ जुल्म होता है ना, वो बेचारा बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए जुल्म होता है। वरना अगर वो बहादुर हो, अगर वो मजबूत हो, किसी की जुर्रत है उसके साथ जुल्म करने की, और जालिम हमेशा मजबूत होता है, उसके पास पैसे भी होते हैं, सोर्स भी होते हैं, वो वकील खरीदता है, करोड़ों के वकील खरीद रहा है, और दूसरे चौथे दिन वो बाहर आए होते हैं। मसला गरीबों का होता है जिनके पास पैसे नहीं है। हमारी पूरी कोशिश है कि जिन लोगों के पास सर्वाइवल नहीं है वो आए, डिस्कस करें, और जितनी मुमकिन हुआ हम इंशाल्लाह उनके केस जितनी रियाती कीमतों पे हम उनके पेश कर सके जरूर करेंगे। और ये पाकिस्तान तरीके का बात का मंसूर का एक हिस्सा है। फिर ये है कि अजान हो रही है और नमाज का भी टाइम है, तो मैं बस इसी के साथ ही इजाजत चाहूंगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासर हो। ये मुख्तसर सी बात है, इसके बाद नमाज होगी। बस अभी मेरा ख्याल है जलसे को इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।